Draw the number line and represent the following rational number on it. हाँ बताओ क्या रैशनल नंबर? First, -5/8. Good evening, sir. हाँ, good evening. So Jagrit, how many questions you have done from the exercise? Sir, 13. 13 you have done. Okay, you are ahead of Abhijit. Okay, so do Sir, you know how to I have- represent this? Sir, I have not sent you some photos. I have only sent you till 88. Sorry. Okay, is there any question that you are in doubt or you think that you will not be able to solve from the exercise that I have given? No, sir. अभिजीत, तुम्हें लग रहा है ऐसा कोई? No, sir, सब कर लोगे, ठीक है. अब ये क्वेश्चन कोई कर सकता है? जागृत, कैन यू डू इट? रिप्रेजेंट -5/8 ऑन नंबर लाइन. याद है कुछ? Yes, sir. You have to change it in mixed fraction. Mixed fraction, you can't change it in mixed fraction. You can only change in mixed fraction when the numerator is more than the denominator. Okay, so okay, let us do it. First of all, we have to draw a number line, isn't it? 0 will be there, 1, 2, 3, 4, and so on. There will be arrow because it is never ending, because it is a number line. Here -1, -2, -3, -4, and never ending, isn't it? Now -5/8, if the numerator is less than the denominator, then the rational number will be between 0 and 1 or 0 and -1. If it is in negative, then it will be here 0 and -1. If it would have been positive, then here, that is between 0 and 1. न्यूमरेटर अगर डिनोमिनेटर से छोटा है तो 0 और 1 के बीच में आएगा. नेगेटिव है तो 0 और -1 के बीच में आएगा. पॉजिटिव है तो 0 और 1 के बीच में आएगा. हाँ. So this is negative. हाँ, this is negative, so it will be on the left, isn't it? और न्यूमरेटर हमारा छोटा है, 5 is less than 8, so -1 और 0 इसी के बीच में, यहीं पे कहीं आएगा, है ना, इसी बीच में. फर्स्ट ऑफ ऑल ये स्टेप हो गया. इतना समझ में आ गया? yes, sir. Sir, अगर denominator सर अगर डिनोमिनेटर छोटा होगा न्यूमरेटर बड़ा होगा तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. फिर जैसे कि मान लो 4/3 है, ठीक है, इसको मिक्स फ्रैक्शन में कर देंगे, 1/3 हो जाएगा, ठीक है. yes, sir. मतलब 1 से ज्यादा है और 2 से कम है, ठीक है. 1/3 आया तो मतलब 1 और 2 के बीच में आएगा. एंड 1/3 है मतलब 1 तक तो पहुंच गए, 1/3 और लेना है, मींस 1 आउट ऑफ 3 पार्ट्स, सो इट इज टू बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स and then only one part from it is to be taken, so this is the point 1/3. समझ में आया? yes, sir. तो अब बताओ -5/8 कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? Excuse me, sir. हाँ. Sir, we will make 7 lines. Good. We will draw 7 lines to separate it for 8 equal parts, isn't it? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Now there are 8 equal parts. Now how many times we have to move left? 5. 5 times. Good. So 1, 2, 3, 4, 5. So this is the point where we have reached. So we have to encircle that like this. Okay. And when we are moving towards left, there has to be like this arrows also towards left. Like this. Is that understood? Yes, sir. So this is the point that is required. Okay. और इसको थोड़ा अगर दिखाना है तो नंबर लाइन में बड़ा करके दिखाओ. जैसे यहाँ 0, यहाँ पर -1 लिख दो, ठीक है. थोड़ा दूर में -2 लिख दो. दिस इज एनफ, ठीक है. यहाँ लगा दो, यहाँ पे कर दो. नाउ यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Now you can take 8 parts. 1, 2, 3, 4. Sorry, 5 parts. 5 parts here. So this you can show as -5/8. Is that understood?
Yes, sir. Yes, sir. Okay. Now suppose I am writing minus 14 by 11. Try this one. मिक्स फ्रैक्शन में किया पहले? No, no, sir. तो फिर गलत Sir, हो गया। I have done. I am sending you. Sir, I हाँ। have done. I am sending. हाँ, शेयर करो। जीरो मार्क्स तुम्हारा भी। फर्स्ट यू हैव टू कन्वर्ट इट इनटू मिक्स्ड फ्रैक्शन ना। मिक्स्ड फ्रैक्शन में क्यों नहीं कर रहे हो? पहले बताओ मिक्स्ड फ्रैक्शन में क्या Sir. आएगा जागृत? सर 1/3/11। सर मैंने वो साइड में किया है, उसकी फोटो नहीं तो भेजी। उसको भी दिखाना है, ठीक है। -1 3/11, ठीक है। दैट मीन्स 0 -1, मतलब कि -1 से ज्यादा एंड -2 से कम, मतलब इसके बीच में आएगा फर्स्ट ऑफ ऑल। इसमें क्या डाउट है? जो भी सबसे पहले आया 1, इट मीन्स उसका बस नेक्स्ट नंबर ले लेना है। 1 है यहाँ पर तो 1 और 2 के बीच में, अगर 2 है तो 2 और 3 के बीच में, 3 है तो 3 और 4 के बीच में, दैट्स ऑल इसमें। हाँ Sir, we will not take off the denominator. Sorry, numerator. See, I told you there are 2 steps. First step तो ये देखना है किसके बीच में आएगा, what I have shown now. First step क्या है? पहले मिक्स्ड फ्रैक्शन में कर लिया, then we have to see what this number 1. इमीडिएटली इसके बाद क्या आता है 2, मतलब 1 और 2 के बीच में आएगा फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड माइनस है तो इसलिए लेफ्ट साइड में आएगा। Then we have to take 3 out of 11. We will be separating it into 10 lines will be drawn, okay, like 10 that. lines. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Now there are 11 And parts. please- Now 3 parts are to be taken, 1 2 3. मतलब तुम लोग कुछ नहीं समझे, फिर से यही पढ़ाना पड़ेगा। The same thing to be told again and again. -14/11. First of all, you have to convert it into mixed fraction. 1s are and then 3/11. Okay. What does that mean? After the second step is it will be between -1 and -2, क्योंकि यहाँ पर -1 है। दिस इज टू बी कंसिडर्ड फर्स्ट। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में ये वाला कंसिडर करेंगे, पहले सोचना ही नहीं है 3/11 के बारे में। मिक्स्ड फ्रैक्शन में करने के बाद you don't have to think anything about the fraction first. You have to just take this one, okay, जो पहले आएगा, ठीक है। तो हम लोग 1 को देखेंगे तो इससे हमें ये पता लग गया, एंड दिस साइन इज ऑल्सो टू बी टेकन, कि -1 और -2 के बीच में आएगा। आफ्टर दैट इन द लास्ट स्टेप दिस इज टू बी सीन, इन दोनों के बीच में आएगा, एंड 3 out of 11, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Now 11 parts are there. Now 3 parts are to be taken, and negative है तो towards left, 1 2 and 3. So this is the required point. कुछ समझ में आया? Yes, sir. चलो देखते हैं। अभिजीत? Yes, sir. Okay. -12 by, suppose I am writing here 10. Try this one. Done, sir. Okay, mixed fraction में क्या आया? Sir, 1 2/10 -1 2/10. -1 2/10, ठीक है। उसके बाद Done, sir. Sir, then. ओके, then I. बताओ Sir, कहाँ आया? -1 जीरो minus- लेफ्ट आया कि राइट आया? Sir, negative side. ओके, हाँ, कहाँ पे आया? Sir, -2 and -1. ओके, -2 और -1 के बीच में, ठीक है। कितने पार्ट्स में डिवाइड किया? 9 lines. 1 Sir, 2 9 3 lines. 4 Nine 5 6 7 8 9, तो 10 Then पार्ट्स 2 में हो गया। steps. 2 steps from then two here, jumps. 1 and 2, Yes, sir. ऐसे ही ना? No, sir. तो Sir, -1, sir. हाँ, Sir, Sir, -1.
हाँ गुड, -1 से 2 स्टेप्स लेफ्ट है ना, सो दिस इज द पॉइंट, यस सर, ठीक है, यस सर, तो दिस इज -1 2/10, समझ में आ गया? ओके, टेक अ Yes, sir. स्क्रीनशॉट। अब इस पे जितने भी क्वेश्चन है उसको प्रैक्टिस करना खुद से, इतना ही है, इसमें और कुछ नहीं करना है, ठीक है। अगर यहाँ पे -2 4/7 आ गया है ना, दैट मीन्स व्हाट, कहाँ पे आएगा? Sir, -2 and minus -1 -2 -3, जैसे पॉजिटिव में होता है 2 और 3, वैसे यहाँ -2 और -3 के बीच में आएगा, ठीक है। नाउ 4/7 Sir, why? मीन्स 1 2 3 4 5 6। हाँ, Sir, क्यों माइनस माइनस का मतलब ही होता है लेफ्ट साइड में जाना है ना हमें, मतलब -2 से और लेफ्ट जाएगा ना, क्योंकि वी आर गोइंग टुवर्ड्स लेफ्ट, तो -2 से आगे और निकलना है, मतलब किस साइड निकलेंगे, लेफ्ट की राइट? सर लेफ्ट? माइनस है ना, माइनस का मतलब ये यू हैव टू गो टुवर्ड्स लेफ्ट, -2 के बाद और लेफ्ट जाना है 4/7, इसीलिए माइनस लगा, वो माइनस कॉमन है सबके लिए, ठीक है। ओके सर, ओके तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, जैसे प्लस साइड जा रहे हैं राइट साइड, वैसे ही लेफ्ट साइड में भी जाना है, ठीक है, इसमें कुछ ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। समझ में आया? जागृत, अंडरस्टूड? यस सर, सर मेरा सही आंसर है। ओके, देखते हैं, मैं दूसरा लेता हूँ। -21 सपोज 8, इसको करो और मुझे फोटो शेयर करो। डन सर, सेंडिंग। हाँ भेजो। सर भेज दिए। हाँ ठीक है, बट इसमें एक चीज कमी है, वो एरो भी लगाना है। लेफ्ट साइड तुम लेके गए ना, उसमें एरो भी लगाएंगे ना, लेफ्ट साइड का एरो। -2, बोथ ऑफ यू हैव डन द सेम मिस्टेक। ये जो हमने ड्रॉ किया, 0 -1 -2 है ना, -3 ऐसे ओके मान लो है, ठीक है। नाउ माइनस, ये कितना है मिक्स फ्रैक्शन में, -2 5/8 है ना, 2/5/8। 1 2 3 4 5 6 7 सपोज, तो 5/8 लेना है, 1 2 3 4 5। तो ये जो है ना, यहाँ पे एरो बनाना है, थोड़ा बड़ा दिखाओगे तो क्लियर दिखेगा, है ना। लाइक दिस एरोज आर टू बी देयर, कि हम लेफ्ट जा रहे हैं ये बताने के लिए, ठीक है। सर, सर हाँ आप पॉजिटिव में भी ऐसा ही होता है क्या? हाँ, पॉजिटिव में जाओगे तो राइट साइड एरो दिखाएंगे ऐसे। इफ इट इज सपोज 2 5/8 है ना, तो वो 2 और 3 के बीच में होगा। 5/8 मीन्स 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7, तो 8 हो गया ना। 5/8 1 2 3 4 5, दिस इज द पॉइंट रिक्वायर्ड, बस। ओके सर, समझ में आया? यस सर। ठीक है, ओके। तो इसको फिर प्रैक्टिस करना है ना। और कोई ऐसा डाउट पहले से? सर एक और है, सर एक बताओ। मिनट, सर एक मिनट। सर लिस्ट 5 रैशनल नंबर बिटवीन -1 and 0। 5 लिस्ट रैशनल 5 रैशनल। सर लिस्ट नंबर्स, वही लिस्ट मतलब वही फाइंड करना है, और क्या, बिटवीन 1 and 0, यही है ना, -1 and 0। ओके, -1 का मतलब -1/1 एंड 0 का मतलब 0/1, ठीक है। और इसके बीच में हमारे पास अगर नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं, वी हैव टू इंक्रीज द डिनोमिनेटर, लाइक हियर वी कैन मल्टीप्लाई इट बाय 10, और यहाँ पे भी डिनोमिनेटर हमेशा सेम रखना है, और सेम चीज से हमें ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ता है। नाउ ये क्या आ जाएगा, -10/10, एंड यहाँ क्या आ जाएगा, 0/10। क्या क्या बोल रहे हो? सर किसी भी चीज से मल्टीप्लाई कर सकते हैं? हाँ, 1000 लाख ऑफ तुम रैशनल नंबर निकाल सकते हो किसी के बीच में, ठीक है। और अगर तुम्हें पूछेगा एग्जैक्ट बीच में निकालना है ना, एक होता है, इसमें तो तुम्हारा आराम से निकल जाएगा ना, -9/10 -8/10 ऐसे चलता जाएगा, ठीक है। -1/10 तक निकाल सकते हो ना, ठीक है। नाउ इफ यू आर टोल्ड टू फाइंड ए रैशनल नंबर एग्जैक्टली बिटवीन, ठीक है, सपोज -1 and 3, ठीक है,
तो we have to first add both of Yes. them and divide it by 2. So ये कितना हो जाएगा? -1 plus 3 is 2 -2. -2 नहीं, 2 होगा। 3 - 1 कितना होता है? 2 प्लस वाला Yes, बड़ा sir. है ना, Sir, 2 by 2 ये दोनों कट हो जाएगा तो Yes, क्या हो sir. गया? 1। समझ में आया? 7. So find the rational Yes, number sir. exactly between -1 and अगर 3 है तो it will be 1. तो ऐसे निकालना है। Suppose I am telling you to find the rational number, इसको करो है, find a rational number exactly between 2/3 and 1/7. Can you try this, both of you? Yes, sir. Okay. Jagrit? Yes, sir. Okay, try it. Done, sir. Okay, Jagrit, what's your answer? 5/21. And Abhijit? 17/42. ये देखते हैं। 2/3 plus 1/7. Okay. Whole divided by 2 equal to, ऊपर क्या आ जाएगा? LCM 21, 14 plus 3 divided by 2 equal to 14 plus 3 is 17/21 divided by 2, or it can be written as 17/21 into 1/2, or it can be written as 17/42. So whose answer is 17/42? Sir, mine. Abhijit. So that is right. And 5/21 is wrong. So what mistake you have done, Jagrit? Sir, I took any number between 14 and 3. 14 and 3. Why? I told you to do the, if we have to find out exactly between two rational numbers, then we have to add them and just divide it by 2. Or you can do separately also. First add both of them. Okay. It will come out to be how much? 17/21. And then afterwards divide it by 2. Or you can write it as 17/21 into 1/2, which is equal to 17/42. ऐसे भी कर सकते हो separately. समझ में आया? Yes, sir. Okay, try the next one. Find a rational number exactly between -1/7 and 4/3. Try this one. Sir, What's your answer, Jagrit? 25/21. Abhijit? सर पिक्स एंड नहीं हो रही है। आंसर क्या है वो बताओ। सर 25/42 माइन 25/42 ना? यस सर। सर मैंने 2 से डिवाइड करना भूल गया सर। हाँ तो क्यों भूल गया? फिर तो 0 मार्क्स ही मिलेगा ना। इतना मेहनत करने का कोई फायदा ही नहीं हुआ। Now different kind of question. Which of the two rational numbers is greater, 2/-3 और -4/5? समझ में आया इसको कैसे करना है? Sir, I will try. ऐसे बताओ, how will you do? How will you try? What are you going to do? Sir, we will take the LCM, then divide it Good. by the denominator and multiply by the numerator. And Okay, then you can which try one means is the- अभिजीत try कर सकते हो? सर आई एम नॉट Okay, ठीक है तो कर देते हैं।
Sir, can I do it first? Okay, try that. I will be giving you 2-3 minutes. Sir, done. What's your answer? Sir, sir, 2 upon minus 3 is greater. हाँ अभिजीत बोलो. Nothing, sir. Okay. So this can be written as minus 2/3. है ना, नीचे तो कंफ्यूज करने दिया ना माइनस. ये पता है ना माइनस को ऊपर लेके जा सकते हैं हम लोग. Yes, Yes, sir. sir. ओके. नाउ वी हैव टू फाइंड द, हमें डिनोमिनेटर को सेम करना है टू कंपेयर. फर्स्ट ऑफ ऑल जब भी कंपेयर करना है तो डिनोमिनेटर शुड बी सेम, उसके लिए एलसीएम निकालना पड़ेगा. सो 3 is to be multiplied with 5 and here 5 is to be multiplied by 3. नाउ जो भी नीचे करते हैं वही ऊपर करना पड़ता है. सो हियर आल्सो into 5 and here into 3. इतना समझ में आया? Yes, sir. सो minus 10/15 और minus 12/15 कौन सा बड़ा है? Minus 10. गुड, minus 10/15. अभिजीत समझ में आया प्रोसेस? Sir, is my correct? हाँ यस. Sir, can I Abhijit, got it? explain once again? देखो सबसे Hello, पहले sir. डेनोमिनेटर सेम करना है, ठीक है. तो इफ Okay, sir. Yes. कहीं भी -1/-2 दिया है तो फर्स्ट हमको सिंपल करना है. ऐसे लिख सकते हैं ना इसको. Yes, yes. तो पहले हमने उसको Sir, then सिंपल लिख दिया. LCM. हाँ Sir, then LCM. देन छोड़ो, ये समझ में आया ना जो मैंने बताया अभी. Yes, sir. 1/-2 को माने वैसे ही हमने 2/-3 को पहले -2/3 लिख दिया. नाउ सपोज यू हैव गॉट 10 मार्क्स और जागृत को मिला है 90 मार्क्स, है ना. बट हर कोई Yes, sir. पूछेगा ना आउट ऑफ हाउ मच यू हैव गॉट इट, तभी तो कंपेयर कर पाएंगे ना किसको अच्छे मार्क्स आए. इफ जागृत हैज गॉट 90 आउट ऑफ 100 एंड यू हैव गॉट 10 आउट ऑफ 10, तो तुम्हारा बेटर हो गया ना. Yes, sir. सो पहले डिनोमिनेटर को सेम करते हैं, तभी देन ओनली वी कैन कंपेयर कि किसका ज्यादा है और किसका कम है. सो टू मेक द डिनोमिनेटर सेम हमें क्या करना पड़ेगा? वी हैव टू फाइंड द एलसीएम ऑफ द बोथ द डिनोमिनेटर्स, है ना. तो अगर यहाँ पर एक -2/3 है एंड वन इज -4/5, तो हमें ये 3 और 5 का क्या हो गया एलसीएम? 15. Understood, sir. है ना. तो 15 लाने के लिए नीचे हमें 3 into 5 करना पड़ेगा, और नीचे जिससे भी मल्टीप्लाई करते हैं सेम इज टू बी डन इन द न्यूमरेटर आल्सो, है ना. Yes. और वही हमने इधर भी किया. देन वी कैन कंपेयर, जब हमारा 15 डिनोमिनेटर है दोनों जगह, नाउ वी कैन कंपेयर. हमें पता है कि -10 इज ग्रेटर देन -12, है ना. पॉजिटिव में, सॉरी नॉट 20, 12. पॉजिटिव का उल्टा होता है ना. पॉजिटिव में 12 इज ग्रेटर देन 10, नेगेटिव में 10 इज ग्रेटर देन -12, है ना. -10 ग्रेटर देन -12. समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. देन होमवर्क पार्ट लिख लो. Represent -2/3, -4/12, -20/15, 3/2, 12/7 on number line. इतना लिख लिया. Yes, sir. Second, find 3. Sir, can I share it by tomorrow? Sir, can I share it हाँ by ठीक है, tomorrow? ओके ओके. बट लास्ट क्लास के बहुत, जितना पहले उसे उतना अच्छा है. Find 3 rational numbers between -1/7 and 3/11. ठीक है, यही 2 क्वेश्चन है बस, तो ट्राई करना पहले भेजने का. ठीक है, लिख लिया. Sir, writing. Sir, written. Done, sir. Vijit, okay, that's all for Yes, today. sir. Sir, just wait a second. हाँ बोलो. Sir, done.
Okay. Bye-bye. Bye, sir.